IIT BHU में लास्ट 4-5 ईयर से मीडिया.नेट जीरो हायरिंग पे जा रही है। मीडिया.नेट इंटरव्यू वॉज टफेस्ट विच आई हैड एवर। हमारे कॉलेज में ऐसा कहते भी हैं कि मीडिया.नेट सिर्फ कैंडिडेट मास्टर्स को ही हायर करती है। इवन आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Hey guys, welcome back to the new video. So my name is Atul Yadav. I am currently a final year engineering student at IIT BHU, and I will be joining Zomato as a software engineer in just few weeks. So in this video, I will tell you about my interview experience at Media.net, and also I will tell you why it was the toughest interview experience for me, and also I will share the exact questions which was asked me in the interview and why I was being rejected in the first round itself, what mistakes I did so that you don't repeat it, you learn by my mistakes and don't make it in your actual interview. So guys, before the interview experience, let me tell you about the CTC breakup. So for the internship, Media.net offers 1 lakh per month stipend, and for the full-time offer, 18 LPA is your base, which is around 1.5 lakh per month, which you will be getting as your monthly salary. And there is 4 lakh joining bonus, which is credited along with your first month salary. And also there is 1 lakh relocation bonus. And there is a retention bonus of 16 years, which is divided into 4 years. So the total CTC becomes around 38 LPA. So this compensation is offered in IIT BHU, and I'm not sure about what it offers in other colleges. So guys, now let's start this video. So guys, जब तुम्हारा थर्ड ईयर स्टार्ट होता है तो तुम्हारे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना स्टार्ट होती है, एंड Media.net अराउंड मिड अगस्त में आई थी. So guys, Media.net was open for all branches. So apart from your branches, either you are from computer science, electrical or civil, chemical, mechanical, metallurgy, mining, any branch, so you can appear for the test. And there was a CGPA criteria. The minimum CGPA was I think 7 or 7.5. Like mostly interns के लिए इतना ही होता है, 7 या फिर 7.5. और उनका पहले होता है ऑनलाइन असेसमेंट. Media.net का जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है वो हमेशा इंटरव्यू बिट पे होता है, एंड ऑनलाइन असेसमेंट में देयर वर 3 क्वेश्चंस and difficulty level was of course on the harder side. And as far as I remember, one question was from dynamic programming, and the other question was a bit of, you can say, the implementation, but it was a very lengthy implementation. After that, on the same day, interview shortlist आती है जिसमें around 10 candidates were shortlisted for the interview process, और उसमें like 9 out of 10 was from computer science or mathematics department, and except me was from non-CS branch, like I am from metallurgy branch. तो गाइज, आफ्टर द इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है. जैसे फर्स्ट राउंड होता है, दैट इज कम्प्लीटली योर DSA राउंड, and the whole interview was around 1 hour interview, and it was purely based on the DSA. And yeah, as far as I remember, there was only one interviewer, and the interview starts with my introduction. So he first asks that if I had studied the CS subjects like computer networks, DBMS or not. So I told that these courses have not been taught by the institute, और मैंने इसे खुद से पढ़ा है, and I told that I know the basics. So he said that okay. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किया. So the first question he asks that what happens when you search for a website in your browser. So like अगर तुम facebook.com सर्च करते हो अपने ब्राउजर पे, तो बिहाइंड द सीन क्या होते हैं. तो ये बहुत ही बेसिक एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सॉफ्टवेयर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. तो आई आंसर्ड दैट. तो ही वाज ओके विद द आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैशिंग एंड एन्क्रिप्शन. अब गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन का इतना स्टूपिड आंसर दिया था. अगर मैं इंटरव्यूअर होता ना, मैं तो उसी टाइम इंटरव्यू खत्म कर देता. मतलब इतना स्टूपिड आंसर मैंने दिया था.
तो आफ्टर दिस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे एक एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछा कि यू हैव मिलियंस ऑफ रोज इन अ टेबल एंड यू हैव टू प्रिंट ऑल द फर्स्ट नेम्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर लास्ट नेम. सो लाइक अगर तुम्हारा लास्ट नेम कुछ है तो ऑल द यूजर्स हैविंग दैट लास्ट नेम तुम्हें उनका फर्स्ट नेम तुम्हें प्रिंट करना है. तो क्वेश्चन ये था कि तुम इस क्वेरी को कैसे और ऑप्टिमाइज करके लिखोगे. तो गाइज सिंपली ये इंडेक्सिंग का क्वेश्चन था और गाइज उस टाइम तक मैंने एसक्यूएल नहीं पढ़ा था, जिससे मुझे ये आइडिया नहीं था कि अच्छा ये इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है. तो गाइज इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं नहीं दे पाया था और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मीडिया.नेट का इंटरव्यू देने के बाद मुझ में जो मोटिवेशन आई कि पढ़ने की कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, किस किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं. तो गाइज ये मीडिया.नेट का इंटरव्यू मेरे लिए एक फाउंडेशन का काम किया कि मैं आगे अपनी फ्यूचर इंटरव्यूज में कैसा परफॉर्म करूं. तो गाइज उसके बाद आफ्टर दिस एसक्यूएल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे डीएसए का क्वेश्चन स्टार्ट किया. सो देयर वाज 2 डीएसए क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा. फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ इजी क्वेश्चन एंड आई वाज एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट ही presented the next question in the Google Doc. और it was a more difficult question for me क्योंकि इसको समझने में ही मुझे 5 से 10 मिनट लग गए थे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है. तो गाइस ये क्वेश्चन ग्राफ प्लस डायनामिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था. सो इट वाज मोर लाइक अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीपी स्टाइल क्वेश्चन. सो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे 5 से 10 मिनट लग गए थे ऑलरेडी उस क्वेश्चन को समझने के लिए. The solution which I came was of time complexity n square log n, and of course interviewer was expecting some more optimal solution. So guys मैं उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया. So guys I was rejected in the first round of media.net interview during my internship season. And guys जो जितने भी 10 लोगों की shortlist थी, none of us was proceeded to the second round. Everyone was rejected in the first round. So guys मैं हॉस्टल आया तो मुझे हॉस्टल आके पता लगा कि मीडिया.नेट पिछले 4-5 सालों से 0 हायरिंग पे जा रही है. सो गाइज ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो गाइज अगर तुम मीडिया.नेट जैसे कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि गाइज ये सब कंपनीज मेजरली डीएसए पे फोकस करती हैं. तो ये सब कंपनीज ज़्यादा डेवलपमेंट पे नहीं जाती. दे मेजरली फोकस ऑन योर सीपी एंड डीएसए. तो या गाइज सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट मीडिया.नेट. आफ्टर दैट मैंने और भी कंपनीज के इंटरव्यू दिए. इफ़ यू वांट टू नो माय सिस्को इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द फुल टाइम रोल एंड हाउ आई क्रैक्ड दैट 4 राउंड इंटरव्यू ऑफर, तो तुम ये भी वीडियो देख सकते हो. इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप अभी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप अभी जेई एस्पिरेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप सीजन और प्लेसमेंट सीजन. तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ आइडिया होगा, फिर उसके हिसाब से मैं कंटेंट और भी बनाऊंगा आपके लिए आफ्टर आई गेट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू आर willing to watch.